At the Madrasa Islamia School in Chinhat, Lucknow, Uma Bano is a topper with a knack for science. She wants to become a doctor when she grows up, but that dream is in danger. Her science and math teachers may not be back next year. अगर कल को आप स्कूल ना जा पाओ तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, क्या क्या चलेगा आपके दिमाग में? मैं क्या सोच, मेरा ख्वाब ही टूट जाएगा। Madrasa teachers in Uttar Pradesh have not received their salaries for over 6 years now. Now the state government was also giving them an additional sum of 3,000 rupees, but since October of last year the state has withdrawn that amount of compensation as well, because madrasa teachers allege the state has learned that the central government is not going to renew its scheme which was giving money to teachers who were teaching scientific subjects within madrasas. This threatens the existence of scientific or modern education in madrasa schools, where usually poor Muslim as well as Hindu kids go to study. Madrasas are Islamic schools where Urdu, Arabic, Persian languages are taught along with religious studies. In 2009, the Union government introduced the scheme for providing quality education in madrasas to ensure that students received a well-rounded education. It is a lifeline for the marginalized Pasmanda community members as well as for girls like Uma Bano, whose parents won't send them to regular schools. Though Uma Bano's teachers were hired as part of the central government scheme for providing quality education in madrasas in Uttar Pradesh, they claim they haven't been paid their salaries since 2017. Moreover, the state government's honorarium of rupees 3,000 for providing quality education in madrasas to ensure that students received a well-rounded education. It is a lifeline for the marginalized Pasmanda community members as well as for girls like Uma Bano, whose parents won't send them to regular schools. Though Uma Bano's teachers were hired as part of the central government scheme for providing quality education in madrasas in Uttar Pradesh, they claim they haven't been paid their salaries since 2017. Moreover, the state government's honorarium of rupees 3,000, which was above and beyond the scheme, they had been subsisting on this extra money, was also withdrawn last year. मोदी जी ने कहा था कि मैं हर मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य है। मानवर मैं अपेक्षा करता हूं, कंप्यूटर भी छीना जा रहा है और मजहबी शिक्षा भी लेने से वंचित किया जा रहा है। जब उन मदरसों में शिक्षकों को मानदेय मिलना बंद हो जाएगा तो भूखे प्यासे रह करके वो बच्चों को पढ़ाने क्या काम करेंगे? मदरसा शिक्षा में जो भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार की जो चिंता है, अभी सरकार की चिंता है कि हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। इसलिए मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का काम किया गया। उन्हें उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ हिंदी, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाकर मुख्य धारा से माननीय सभापति जोड़ने का काम किया गया। अभी नहीं, ये चिंता है मुस्लिम समाज के बच्चे मुख्य धारा से जोड़ दिए जाएंगे तो उनको बरगलाया और बहकाया नहीं जा सकता। इन्हें मानवर बोर्ड की चिंता है, उनकी पढ़ाई की और शिक्षा की चिंता नहीं है। मानवर मुख्यमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे गए हैं और अब मानवर सरकार ने ये निर्णय ले लिया, भारत सरकार ने दिनांक 17/10/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि ये योजना वर्ष 2021-22 तक अनुमोदित रही है और अब जिनने जो पढ़ाया ये केंद्र सरकार के अलग प्रदेश सरकार से कहीं भी बजट देना होगा, जो अवशेष होगा उसका हम भुगतान कर देंगे। The scheme for providing quality education in madrasas 2009 allows registered madrasas to get 3 modern education teachers to teach science, math, Hindi and English. But this scheme hasn't been renewed by the Ministry of Minority Affairs this year. Primary school modern educators are slated to receive rupees 15,000 a month from the centre and state, which was paid to them in a 60-40 ratio. Over and above this sum, the Uttar Pradesh government was also providing teachers with an additional honorarium of 3,000 a month. Both have been stopped.
मैम जो केंद्रांश हम लोगों का आता है वो कम से कम 6 ईयर हो गया है, उसका पैसा आया ही नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट जब देती थी तो वो भी अभी पिछले यानी कि जो साल गुजरा है हमारा 2022-23, उसमें भी उन लोगों ने कोई भी पैसा नहीं रिलीज़ किया हम लोगों का। तो आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिल रहे? नो मैम, कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है इस वक्त। तो ये बताइए कि फिर आप स्कूल में पढ़ाना जारी क्यों रखा हुआ है आपने? क्या आपको ड्राइव करता है कि अभी भी टीचिंग करें? मैम हम लोग सिर्फ इस वजह से भी पढ़ा रहे हैं कि हम लोगों को लगता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट हम लोगों का जो पिछला बकाया मानदेय है वो रिलीज़ कर दे, और हमारी स्कीम जो कह रहे हैं उन लोगों ने कि बंद कर दिया, तो हो सकता है कि नए सिरे से वो फिर से शुरू कर दी जाए। बस इस उम्मीद में हम लोग मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अब मदरसों में आधुनिक एजुकेशन की क्या कीमत है मैम? कितनी इम्पोर्टेंट है? मैम जो मदरसा है तो उसमें आधुनिक विषय की इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है, जो ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वहाँ पे कुछ घरों के बच्चे होते हैं या कुछ घर ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम की फ़ीस, या वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, क्योंकि मदरसे में एक थोड़ा सा होता है पर्दा। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो बच्चों को भेजा जाता है या लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं तो उन लोगों को हम लोग अरबी फ़ारसी के साथ साथ साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, इन सब लोगों की सारी जो एजुकेशन होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे वो बच्चे यहाँ जो हमारी हैं वो यहाँ पर जो हमारा मदरसा बोर्ड है वो पूरा यूपी बोर्ड के ही बराबरी आ जाता है। Established in 1932, the madrasa needs more than a lick of paint to rescue it from its dilapidated condition. Some classes are held in unfinished skeletons of rooms. There was never enough money to build walls or roofs, says the school's principal Lal Muhammad. The computer lab has one desktop installed with Windows XP. The school runs on donations from community members in the neighborhood and doesn't charge students any fee, the management said. Banu's mother Razia cannot afford to send Umar to a private school, which they say costs at least Rs 2,000 a month. The nearest government school from the locality is 5 kilometers away, but the family expressed hesitance in covering that distance every day when the madrasa is a stone's throw from their house. आप ही बताइए, मेरी लड़की स्कूल जा रही है बराबर, यहाँ फ़ीस भी कम है, यहाँ दीनी तालीम भी अच्छी सी मिल रही है, लड़कियाँ सेफ्टी में भी हैं, हम भी पहुँच जाते हैं, और मेरे हस्बैंड मज़दूर आदमी हैं और ड्राइवर हैं, यही टैक्सी वगैरह चलाते हैं। तो हम अपनी लड़की को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, ये भी हमने सुना है, ये भी प्रचार होता है। तो हम कैसे जो है इसको कर पाएंगे? हम खुद अकेले रह के भी बच्चों को पास में जाते हैं, बिगैर नकाब के, बिगैर हिजाब के भी जाते हैं, पहुँचा इसको ले आते हैं, और लड़की सेफ्टी में भी हमारी है। ये आप ही लोग समझ सकती हैं। अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो लड़कियां कैसे पढ़ेंगी? बिगैर थोड़ा दूर भेजने में क्या दिक्कतें आएंगी? दूर भेजने में हमको रिक्शा करना पड़ेगा, 10 रुपये या 5 रुपये ऑटो से जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे हस्बैंड की इतनी सैलरी है नहीं, इतना इनकम है नहीं। एक मजदूरदार आदमी कितना क्या करेंगे? और 2 लड़कियां हैं, और बिगैर पढ़ाए इस ज़माने में तो गुजारा है ही नहीं। मेरा नाम है जरीन फातिमा। आप इसी मदरसे से पढ़ी हुई? जी, मैं इसी मदरसे से पढ़ी हूँ। मैं फर्स्ट से। तालीम कैसी थी? बहुत अच्छी तालीम थी, जितनी भी टीचरें थी बहुत अच्छी थी, पढ़ाई भी अच्छी होती थी, पास भी है, हम लोगों को जाने में भी आसानी होती थी। अब दूर हो गया जब से, फिर मैंने इंटर किया, उसके बाद से मैंने पढ़ाई नहीं की, लॉकडाउन लग गया था। और यहाँ पे तो मतलब कोई चंदा वंदा दे देते थे कभी कदार, फिर मतलब कोई वो नहीं था कि हाँ दो या ना दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। पढ़ाई भी अच्छी होती थी, टीचरें भी अच्छी थी जो पढ़ा रही थी, और भी सारे बच्चे यहाँ से पढ़े हुए, हम लोग भी पढ़े हुए। अब तो हमने इंटर किया है शक्ति विद्यापीठ से। अच्छा। उसके बाद से फिर हमने फॉर्म डाला था ग्रेजुएशन का, उसके बाद से लॉकडाउन लग गया तो फिर हमने पढ़ाई नहीं की। अच्छा, तो अभी फिर पैसे से में दिक्कत हो गई। हाँ, तो फिर मैंने फॉर्म डाला था, फिर अभी उसके पेपर हुए नहीं। अब पता नहीं, अभी थोड़ी पैसों की भी दिक्कत हो गई थी ना, उसकी वजह से फिर जा नहीं पाए। फिर भेजने वाला भी कोई नहीं, इतनी दूर जाना आना, साथ में कोई हो तो जाएं, अकेले नहीं जाते हैं। या मदरसे में आसपास की लड़कियों की अच्छी पढ़ाई हो जाती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, सब लड़कियां यहाँ से पढ़ी हैं हम लोगों। अगर ये मदरसा नहीं होता तो क्या ये सारी लड़कियाँ
बाहर जाके उनके घर वाले भेजते उन्हें उनको पढ़ाई नहीं, करवाने? हम लोगों के तो घर वाले ना भेजते इतनी दूर। Madrasas have been reporting massive dropout rates, 61% from 2016 to 2021, and there are fears that the end of the scheme will only make things worse. In 2016, over 3.17 lakh students appeared in registered madrasa examinations in 2016, but this dropped to a little over 1.22 lakh students in 2021, according to the UP Madrasa Board. Islamic education took shape in India in the 10th century. Sir Syed Ahmad Khan and Fazlur Rahman led the Aligarh movement to introduce modern education in the madrasas in the 19th century. Resultantly, important historical figures like Raja Ram Mohan Roy, Munshi Premchand and Dr. Rajendra Prasad are some exemplary alumni of modern madrasa education. In 1993, P.V. Narasimha Rao's government recognized the need for providing modern education at madrasas, which finally led to the implementation of the SPQEM scheme. The last 6 years have also pushed many madrasa teachers to do menial jobs to sustain themselves. For The Print, this is Shubhangi Mishra reporting from Lucknow.